So today we will do her theory of totalitarianism first. ठीक है? So now write next concept of Hannah Arendt. No, she's not reductionist. If she will be reductionist, she will become totalitarian. She is saying that you are not giving importance to public sphere. That is the most important thing, because freedom is most important thing. So now let us see the next concept of Hannah Arendt. और क्या है? इकोनॉमिक स्फीयर प्राइवेट स्फीयर में आता है मैम, बट उसके कारण तो हम इकोनॉमिक स्फीयर को अंडरमाइन ही कर रहे हैं ना. तो अंडरमाइन करना चाहिए ना. इकोनॉमिक स्फीयर से कौन बहुत सा बड़ा इंपॉर्टेंस है? जिसको अंडरमाइन करना चाहिए उसी को तो अंडरमाइन करा रही हो. तुम चाहते हो दिन भर काम करते रहो और उससे दुनिया का कोई भला होने वाला है? नहीं. हाँ, तो काम तो रोबोट भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. So now Hannah Arendt's theory of totalitarianism. Excuse me, ma'am. And difficult to understand. You need to be very imaginative for this. Yes. Ma'am, there is a sentence that private sphere has been made in open, public. So I don't understand what is private sphere. Private sphere. Economic activity private है. Private sphere में आप हैं. लेकिन अब हमें पब्लिक स्फीयर में आप एक ही काम करते दिखते हैं, इकोनॉमिक, जो आपका मेन काम है आप नहीं कर रहे हैं. तो व्हाट इज सपोज टू बी द प्राइवेट स्फीयर इज नाउ द ओनली थिंग इन पब्लिक स्फीयर. यू डोंट डू एनीथिंग अदर देन इकोनॉमिक एक्शन. फाइन. तो देन दिस इज हर स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑल्सो. व्हाट इज योर क्वेश्चन? हु इज दिस? व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन? Ma'am, yesterday a student has asked a question that what is the power of attraction for the workers? Like the capitalist has the way of life which creates hegemony. So what workers have? So ma'am, Power of attraction will come from the ideas. Okay ma'am. So workers will have to develop those ideas which attract people towards it. Okay. जैसे Congress has established the hegemony by telling the people we will have Swaraj. What Swaraj will give? लाइफ ऑफ डिग्निटी. तो आइडिया है. तो अब बीजेपी पावर में कैसे आई? पहले एक आइडिया को मास तक पहुंचाया गया, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. कांग्रेस आइडिया को कहा गया सूडो सेक्युलरिज्म. तो किसी के पास सबसे बड़ी पावर होती कौन सी है? Idea. आइडिया. आइडिया से ही तो आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं. So ma'am, can we say that the development of true consciousness by intellectuals in the workers can also be one of the reasons for the power of attraction? First of all, intellectuals' role is not just to develop consciousness among workers. Their role will be to position socialism as common sense. Okay. इतना ज्यादा सोशलिस्ट लिटरेचर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोगों को सोशलिज्म ही कॉमन सेंस लगना पड़ेगा, तब आएगा. Okay ma'am. Thank you ma'am. So now come to Hannah Arendt's theory of totalitarianism. Now write the title of the book, Origins of Totalitarianism. अब लिखो, this book has 3 broad segments. 3 broad segments. First is anti-Semitism. Anti-Semitism. SEMITISM. Anti-Semitism. Second is anti-imperialism. Third is totalitarianism. You look right. Later on, she added a new chapter
in the part of totalitarianism titled Ideology and Terror. Underline करो, ideology and terror. That is the crux of totalitarianism. ठीक है, अब लिखो राइट, thus totalitarianism is described by Hannah Arendt as rule of ideology and terror. अब इसी में लिखो, hence the crux to understand her theory of totalitarianism is to understand her views on ideology. ठीक है, नाउ फर्स्ट टू थिंग्स, एंटी सेमाइटिज्म लिखा है और नॉट एंटी इंपीरियलिज्म, दोनों को ब्रैकेट करो। काट क्यों करना है? एंटी इंपीरियलिज्म नहीं, इंपीरियलिज्म लिखना है। एंटी सेमाइटिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों को ब्रैकेट करके, ये दोनों क्या है? इज्म जिसमें भी लगा होता है वो क्या होता है? आइडियोलॉजी। ठीक है, तो इज्म है, आगे एरो ब्रैकेट करके जस्ट राइट आइडियोलॉजीज। ठीक है, अब लिखो, दिस इट सेल्फ शोज, दिस चैप्टर, पहले 2-3 चैप्टर ये हैं आइडियोलॉजी पे है, और उसके बाद टोटलिटेरियनिज्म पे। हम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा तो फिर एक चैप्टर और लिखना पड़ा, आइडियोलॉजी एंड टेरर। ठीक है, तब जाके लोगों को समझ में आया, ओके ये है कहानी। ठीक है, तो ये दोनों जो चैप्टर है ब्रैकेट करो, ये क्या है? आइडियोलॉजी। ठीक है, अब लिखो, दिस शोज हाउ क्रिटिकल it is to understand her views on ideology, to understand her views on totalitarianism. ठीक है, अब एक ऐसे क्वेश्चन लिखो, राइट, विच गवर्नमेंट्स Hannah Arendt has specifically chosen as case studies to explain totalitarianism. First, right, Nazism in Germany. Second, Stalinism, not Marxism, Stalinism in Russia, USSR. ठीक है, तो अब लिखो, या एक और लिखो, राइट, बिटवीन दीज टू
there is a greater elaboration on Nazism than Stalinism. Doesn't mean that Stalinism was less totalitarian, but maybe for avoiding the controversy or whatever, she has not written that much and primarily focused on Nazism, because maybe also her methodology is phenomenology and she has experienced Nazism. ठीक है, तो ये दो स्टार्ट है. यस, फासिज्म नाजिज्म एक ही चीज है, लेकिन जर्मनी के सिस्टम को एक्सप्लेन कर रही है. और both these two explain the features of modernity. These are pathologies of our time. दोनों को ब्रैकेट करके लिखो. ये दोनों सिस्टम क्या एक्सप्लेन कर रहा है? What is these two systems? लिखो, राइट. She describes it as, yeah, she describes them as pathologies, disease pathologies of our times. कोरोना ऑफ आवर टाइम है ये, ठीक है. और कोरोना से बड़ा पैंडेमिक एंड मोर इनविजिबली अफेक्टिंग है, एंड मोर इट इज साइलेंटली किलिंग ऑल ऑफ अस. फाइन. तो दिस इज द ग्रेटेस्ट पैथोलॉजीज ऑफ आवर टाइम्स. अंडरलाइन करो, आवर टाइम्स. अब लिखो, व्हाट इज आवर टाइम. टाइम किस समय में रह रहे हैं? नहीं, बहुत कम लोग पोस्ट मॉडर्न है, मेजॉरिटी. द टाइम ऑफ मॉडर्निटी या एज ऑफ मॉडर्निटी. What is a pathology of modernity? Modernity has reduced man into machine or man into mass, and modernity has dehumanized us because there is no public sphere left where we can express our existence as a human. Fine. So pathology of our time, the negative consequences of modernity. Fine. So our time means modernity. Arrow करके लिखो. लिखो, Hannah Arendt is a critic of modernity. Underline करो critic. देखो, symbolically she suggests that modernity has killed humanity. Something Rousseau is talking about, Gandhi is talking about, and in present form Marx when he talks about alienation. Fine. अब लिखो, right. Hence she writes that modernity begins with the explosion of atomic weapons. Underline करो, atomic weapons. What is their speciality? Yes. Weapons of mass destruction. इसकी जो किताब, ये तो कोई लिटरेचर का व्यक्ति समझा पाए, मतलब बहुत मेटाफोरिकल वर्क है. ठीक है. तो इट, एटॉमिक वेपन मीन्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. ठीक है. तो व्हाट इज अ की टू अंडरस्टैंड Hannah Arendt? मास. ठीक है. द कन्वर्जन ऑफ ह्यूमंस
from human into a mass, from existence to essence, from subject to object. And object, our machines can produce similar types of objects. Fine. It means killing of individuality, killing of uniqueness. So, was Hitler the only totalitarian? No. What US did was also, Hitler was doing at a small scale actually. At a small scale in his concentration camps. What Hitler was doing at a small scale, US has done at a large scale. फाइन. तो हिटलर में तो फिर भी थोड़ा बंद होके काम चल रहा था. यूएस ने तो ओपनली सब अनाउंसमेंट ही कर डाला. ठीक है. तो यही है मतलब a small scale and a large scale. Later on she will also write another book, Banality of Evil, where she will talk at the level of an individual. We as an individual are also totalitarians. Fine. So, because we live in a totalitarian society, you see international politics, you see domestic politics, you see your personal level, it is all same. Fine. So, banality of evil means evil has become normal. When thing becomes normal, and when thing is abnormal, who is normal and who is abnormal, who looks like other is normal, who looks different is abnormal. So banality of evil means evil has become normal because all of us have become evil. And why we have become evil? Because of the modernization and modern society. So she says that only Eichmann is not to be punished. We all have to be punished. And anyone can be an Eichmann. मौका नहीं मिला वरना काम तो सभी लोग कर लेते. ठीक है. जिसको जिसको मौका नहीं मिला वो सब ऑनेस्ट और अच्छे लोग हैं. जिसको मौका मिला, आपको ऑनेस्टी के साथ जीने में भी दिक्कत आती होगी कि मौका नहीं मिल रहा और बहुत दिन हो गए ऑनेस्ट बने बने. ठीक है. मतलब यू मस्ट हैव फेल्ट कि किसी को मारा नहीं, किसी को लूटा नहीं, बहुत बोरिंग हो गई लाइफ. ठीक है. तो बस यही है. पेनालिटी ऑफ इवल मीन्स इवल इज सो नॉर्मल, वी आर जस्ट पिकिंग एंड चूजिंग एंड किलिंग. Everyone deserves to be killed because everybody is a criminal. Is that clear? That is her thought. So, to understand Hannah Arendt, the crux is to understand the concept of mass. And what is a mass? A thoughtless person. Fine. When you do not think, you do not have a capacity to think on your own. So your thinking stops because you cannot think in isolation. You can only think in presence of others. Fine. What happens in isolation is ideology, a flight from reality. You enter into the world of ideas. In order to think in realistic terms, you have to live in reality. And reality is not in your books. Reality is not in your rooms. Reality is outside. इसीलिए ट्रेनिंग के बाद मौज मस्ती के लिए भारत यात्रा भी कराते हैं. But whatever it is, but I don't know what people observe and how much they will observe, because if you start observing India, you will turn rebel. How can things be like that? So how are we tolerating what is happening around us? Because we ourselves have become the evil. Evil has become banal. और हमें कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है. और हमको मतलब प्रॉब्लम छोड़ो, हमको तो बस यही लगता है कि हमको मौका नहीं मिला घास खाने का, हमको मौका नहीं मिला, सारा मौका लालू जी ले गए. हाँ.
घास सारी अपने घर चली गई, हम तो अपने घर कुछ ला ही नहीं पाए। तो अफसोस लोगों को आज इस लेवल पर हो रहा है, यानी कि सोचने की, समझने, क्योंकि रियल वर्ल्ड में है ही नहीं। तो क्रक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाना अरेंट इज, it is a tragedy of our times, it's a pathology of our times, and our times is the time of modernity. And modernity, what modernity has done, modernity has converted us into a mass. In modernity you see mass production, in modernity you see the creation of market at a mass scale. Creation of market as a mass scale is why you require imperialism. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मास। तो आप लोग कौन है? मास है। ठीक है, आप अपने आगे से इंसान लिखना बंद करो। ठीक है, तो तुम लोग हो मास। और मास की खासियत क्या है? लैक्स थिंकिंग, और मास को हाँका जाता है। ठीक है, तो आप when you vote, do you think? That is a big question. And do you have capacity to think? And when can you think? You can't think in isolation. अखबार में एक आर्टिकल पढ़ के और सोशल मीडिया पे सुन के, that is not thinking. You have to go in the public sphere, then you can think. गए तो थे अपने राहुल भाई, लेकिन कुछ समझे ये नहीं पता है। ठीक है, वो समझ के क्या किया वो भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन कम से कम कोशिश तो की उस इंसान ने कि मन की बात कर स्टेडियम से बाहर या स्टूडियो से बाहर वो इंसान गया। दैट नीड्स टू बी एप्रिशिएटेड। भारत जोड़ो व्हाटएवर, ठीक है, जितना अपना समझ अपना अपना किया उन्होंने। तो अब है अपना कंसेप्ट ऑफ मास। मास के बारे में लिखे, मास मीन्स who does not have capacity to think. Who does not have capacity to think means who have lost their mind. So German selecting Hitler and accepting Hitler and listening Hitler and saying Hitler the leader. ठीक है, what else can you say? Someone who have lost their mind. So mass is something lack their capacity to think or mind. ठीक है, अब लिखो how masses lost the capacity to think. ठीक है, right? Because modernity isolated them. देखो, thinking is not possible in isolation. Now write this question. What happens in isolation? Right? Thinking is replaced by ideology. Okay? It means person gets disconnected from reality. अब लिखो why. लिखो, we do not live in the real world. ठीक है, ये लिखो, we live in the world of ideas. Underline करो ideas. Ideas means imagination.
अकेलापन, आप अकेले हैं। वही तो जो बताते हैं वही तो नहीं सुनना होता है। गांधी ने कहा था ना, कान बंद रखो, मुंह बंद रखो, आंख बंद रखो, जो दिख रहा है वो नहीं देखना है। अरे तुम्हारे कई बार छोड़िए, आप आज तो जान जाओ, गांधी जी के 3 बंदर देख रहे हो इतने टाइम से, उसका क्या कर रहे थे? सुना जाता है, यही तो सबसे खतरनाक है। सुनना ही तो नहीं है, समझना है, सुनना नहीं। और समझने के लिए चुप रहना है और ऑब्जर्व करना है, सुनना नहीं। सब फिजिकल तो, मेंटली आप आइसोलेटेड हैं और फिजिकली आप बस चल रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं ना आसपास से। तुम्हें अपने आसपास वालों से कोई लेना देना है? नहीं है। तो वही आइसोलेशन है। आइसोलेशन मतलब दैट इज अ ट्रेजेडी, दैट देयर आर सो मेनी पीपल but you will not find even a single person with whom you can talk freely. इतने लोगों में एक इंसान नहीं मिलेगा जिससे आप दिल की बात करें। तो ये ट्रेजेडी है, प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी एंड टू फ्यू। इतने लोगों में लोग ही नहीं मिलेंगे जिनसे आप बात कर पाए। ठीक है, तो इस भी ये भीड़ है। This is a भीड़, this is a mob, this is not a public sphere, this is not a human society. तो आप इनके आसपास बैठे, इससे चाहे रोबोट के साथ बैठे, क्या ही फर्क पड़ता है? कौन तुम्हें समझने बैठा है और किसको तुम समझा पाओगे? किसी के पास समय है? लोग कहेंगे मेरा अगला क्लास है, मुझे सीट पकड़नी, कौन समझेगा? ठीक है, कर क्या रहे हो? यहां से वहां सीट सीट सीट। यू आर नॉट लिविंग लाइक एनिमल, मतलब यू आर नॉट लिविंग लाइक ह्यूमंस। पागलों वाले काम चल रहे हैं। किसी को किसी की बात सुनने का समय है? जब आपके पास सुनने का समय नहीं तो दूसरा सुनेगा क्यों तुम्हारी? तुमको क्यों सुनेगा वो? तो दैट इज एन आइसोलेशन, एंड आइसोलेशन लीड्स टू व्हाट? टोटलिटेरियनिज्म छोड़ दो। Since the modern times, the sociologists like Durkheim have been studying and trying to understand the causes of suicides. Why suicides are happening? Because people are frustrated. कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं दुनिया, मतलब some people are just finding how does that make a difference when you are already a mass. तो इससे क्या ही मतलब? दैट इज अ ट्रेजेडी दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। कि तो आप कहां चले जा रहे हो? आप रियलिटी में रहोगे तो जी नहीं पाओगे। ठीक है, तो यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। इन ऑर्डर टू थिंक you have to be in the real world, but you are not in the real world. Where is the reality? Human condition is being destroyed. So you are in the world of ideas. Suppose आपके यहाँ ऐसे ही आता है on suicides, the challenges of youth. तो सबसे बड़ा तो suicide ही है। तो पागलों की तरह लोग पता नहीं कौन लिखते हैं उसने वहां पे सुसाइड किया। आप स्टोरी क्यों नहीं लिखते? हाना एरेंट से लिखिए the concept suicide. You need imagination. What a good start if you write that modernity begins with the age of atomic weapon. You have to go deeper and understand the things. Ma'am, can we say that masses are not genuine in nature? Masses are no one. Masses don't have an existence. So who are you? You are a superfluous person now. You are not what you are. You have lost your substance. So you, she says that, who are you? Who has flight from the reality? You are away from the reality. And because you are away from the reality, you have turned into a superfluous person. आप सुपरफ्लुअस हो, आपकी हंसी सुपरफ्लुअस है, आपका रोना सुपरफ्लुअस है, दूसरे के साथ नकली दुख एक्सप्रेस करते हो, नकली सुख एक्सप्रेस करते हो, कहीं कुछ ऑथेंसिटी नहीं है, तुम वो हो ही नहीं ना, तुम बचे ही नहीं वो।
So who are you? Who is a superfluous person who is living in a world of imagination, the flight from reality. ठीक है, तो what is the crux to understand mass and concept of an ideology? You have to think that how and why you have lost capacity to think, because you have been feeded with an idea which tells you not to think. So thinking is a crime now. If you will think, it's a problem. You only need to work. You are just a laborer. You are not a thoughtful person. ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं. अरे वही मतलब वो तो उसकी किताब में उसने एक्सप्लेन किया है, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. तो 2 केस स्टडीज लिए हैं, एक जर्मनी और एक स्टालिनिज्म. तो स्टालिनिज्म है क्या? आइडियोलॉजी है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज है. हिटलर तुमको कहाँ ले जा रहा था? अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. तो दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. यू कैन सी हाउ आइडियोलॉजी इम्पैक्ट. तो ये इसमें कुछ रियल था ही नहीं. जो कह रहा था आर्यन सुप्रीमेसी है, ये सब रेस है, तो वो क्या, व्हाट वाज गोइंग ऑन, दैट जर्मनी वाज इन क्राइसिस एंड पीपल वुड हैव रिवोल्टेड. तो हाउ टू stop the revolution? You have to take people out of the reality. You rule. अभी आपने ग्रामसी पढ़ा है. How do you rule? By controlling the thought. तो लोगों को सोचना, आपको अपने एग्जिस्टेंस के बारे में अगर आप सोचने लग जाओगे तो या तो तुम पागल हो जाओगे या दुनिया बर्बाद हो जाएगी कि ये सब चल क्या रहा है. आप सिस्टम नहीं चलेगा. तो आपको अभी के बारे में सोचने ही नहीं देना है. आपको हमेशा मोटिवेटर आएंगे, बोलेंगे बी फ्यूचरिस्टिक, बी पॉजिटिव, आगे सब अच्छा है. ठीक है, सब बेवकूफ बनाने के काम है. ठीक है, आगे है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको भाषण दिए जाते हैं बी पॉजिटिव, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं. अंडरस्टैंड? सबका पर्पस है टू स्टॉप पीपल थिंक and to compel them to think what you want. तो उस समय की जरूरत थी. Nobody had a solution to solve the unemployment crisis. तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको किसी और दुनिया में ले जाना है. And once, जैसे religion is opium of masses, ideology is also opium of masses. तो आइडिया बना के, कहानी बना के कि एक दिन तुम रूल करोगे, आर्यन रेस रूल करेगी, तो तुमको सुनने में अच्छा लग रहा है कि अपने अच्छे दिन आने वाले, हम स्लम डॉग विल बिकम द मिलेनियर, ऐसे बोलना पड़ेगा. तो तुम मिलेनियर बनने के सपने बैठोगे, रजाई लोगे, थोड़ी रेवोल्यूशन के लिए जाओगे. ठीक है, ऊपर से 2-4 मोटिवेटर आएंगे, वो बोलेंगे कोई भी लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं, एंड ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अब यही सब चलेगा कहानी. तो क्या है हमेशा टोटलिटेरियनिज्म में? ईदर यू विल नेवर टॉक अबाउट प्रेजेंट, यू विल नेवर टॉक अबाउट रियलिटी, यू हैव टू टॉक अबाउट फ्यूचर. क्योंकि फ्यूचर में कौन है कौन नहीं है, 2050 में कौन जिंदा है कौन नहीं, भारत डेवलप्ड है कि अनडेवलप्ड है, कौन बैठा हुआ है. तो फ्यूचरिस्टिक बातें करो. फ्यूचरिस्टिक बातें मतलब विजनरी लीडर हो तुम. तुम्हारे पास विजन है, अगले 100 सालों का विजन है कि बस स्वर्ग यहीं उतर आएगा. तो लोगों को रियलिटी, प्रेजेंट रियलिटी कुछ अच्छी नहीं लग रही है. दे विल ऑल्सो फील टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स. यू विल लिव इन ड्रीम. यू डोंट वांट समबडी टू कम एंड वेक यू अप. दिस इज द मेंटल क्राइसिस दैट 20th century has created, and totalitarianism is an impact of it. यही है टोटलिटेरियनिज्म. तो शी विल एक्सप्लेन एट डिफरेंट लेवल. तो टोटलिटेरियनिज्म का मतलब ही क्या हो गया? किलिंग द ह्यूमैनिटी. किलिंग द ह्यूमैनिटी मीन्स यू आर नो मोर अ ह्यूमन. हु आर यू? अ मास. तो यू आर अ मास नाउ. तो totalitarianism is a feature of mass societies. She says that where totalitarianism come,
totalitarianism come in a large societies. Totalitarianism will not come in a smaller societies, because in smaller societies there are greater chances of interaction, but in mass societies the chances of interaction are less. तो मास, एक सब्सटेंशियल मास होगा तब टोटलिटेरियनिज्म आता है. तो टोटलिटेरियनिज्म का फिनोमिना ही है, इसी मास से हर उसकी थ्योरी में मास 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 का कॉन्सेप्ट आता जाएगा. ठीक है, तो चलो किसका टाइमलाइन? हाना अरेंट का टाइमलाइन है भाई 20s से लेकर के 70s में. शी डाइड इन 75. या Where we can find out real world, because we are going to outside the room, so we are going to indulge with masses only. रियल वर्ल्ड के लिए तुम्हारे अंदर का रियल पर्सन निकलना चाहिए. तो रियल पर्सन कैसे निकलेगा? जब तुम अपने आप को जानोगे. तो अपने आप को जानने के लिए बाकी लोग होने चाहिए जो तुम्हें जनवाए कि तुम कितने गिरे इंसान हो. ठीक है, डेलिब्रेशन, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी. ठीक है, वो उनकी पोयम है ना दुष्यंत कुमार की, मेरे सीने में सही या तेरे सीने में आग जलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए. दैट इज द फिलॉसफी. कैसे आएगा? पहले जब तुम यहां से जाओगे और चाय की दुकान पे बैठोगे और 5 लोगों को साथ में बैठ के डिबेट करोगे, उससे पूछोगे कि तुम्हारा यूपीएससी हो सकता है, करने की जरूरत है, कोई चांस लगता है. ऐसे ही अपने अंदर से क्या होने लग जाएगा तुम्हारे अंदर? तुम अपने एसेंस को पहचान जाओगे. तुम जो गलत कर रहे हो वो क्रिटिकली एनालाइज कर लोगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट, इज देयर अ रियल डिजायर और डिजायर इम्पोज्ड बाय द सोसाइटी? आर यू वर्किंग सो हार्ड फॉर समवन एल्स हु डजंट हैव एनी कंसर्न विद यू? आर यू गोइंग टू पुट योर गुड टाइम फॉर डूइंग समथिंग टू दोज हु आर जस्ट सिटिंग टू शो सी when you will fall and when they will laugh? तो ऐसे तुम कोई है ही नहीं तुम्हारा यहाँ पे, किसके लिए तुम ये कर रहे हो? हैं? कौन? जो पर्सन कहाँ मिलेगा उसको ढूंढना पड़ेगा ना. मिलेगा, मिलेगी, सब होगा. कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ना. अब चलो, आप ज्यादा इमोशनल. यस, जो खुदा और जो महावीर थे उनको आइसोलेशन में ही निपाड़ और मोक्ष मिला है, तो क्या वो आइसोलेटेड पर्सन थे? आइसोलेटेड लोग थे जिनके कारण, जिन्होंने दुनिया की प्रॉब्लम्स से मुख मोड़ लिया. ठीक है, तो कौन बुद्धा से फायदा हो गया किसी को? चलो, वो सब सेल्फ का फायदा कर रहे थे, खुद का डेवलपमेंट कर रहे थे. वही तो है, फिलॉसफी इज नॉट फॉर the growth of a individual, this should be for the person as such. society के लिए करना है. आइसोलेशन में वो सोच नहीं सकते, वो नहीं सोच सकते ना, क्योंकि तुम्हें कोई आईना दिखाने के लिए रहेगा ही नहीं. आप इमेजिनेशन में चलते चले जाओगे, कोई तुम्हें क्रिटिकली एनालाइज करने होएगा ही नहीं ना. तुम जो सोच रहे हो, यू विल बी इन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. तो आइसोलेशन में मान लो हिटलर ने कहा आर्यन रेस सुपीरियर है, तो तुम्हारा अकेले का रीजन कितना होगा उसको फॉल्सिफाई करने का? जब 100 लोग मिलेंगे तो 100 पर्सपेक्टिव आएंगे, तब जाकर के यू कैन इन्वेस्टिगेट कि इज इट ट्रुथ और नॉट. तो ही विल टेल ऑन द बेसिस ऑफ 10 इंस्टेंसेस, बट देयर कैन बी 99 इंस्टेंसेस विच इज अगेंस्ट द थ्योरी. तो हाउ विल यू नीड टू बी इन पब्लिक? मैम, इसीलिए यस, आइसोलेशन में मैम आइडियोलॉजी कैसे बन सकती है? क्योंकि सपोज आप अभी पहले समझो. एक मिनट मैम, सपोज मैम आप हिटलर हो, हम मास हैं. अब क्या हो? सपोज मैम हम, हाँ, सपोज हिटलर है और हम मास हैं. अब हम आपके पास आते ही नहीं तो हमारे पास आपकी आइडियोलॉजी पहुंचती नहीं, और हम आइसोलेशन में रहते तो हम, तो अगर तुम आइसोलेशन में होते तो तुम ये सब इतना भी नहीं सुनते. तो हमारी आइसोलेशन में तो आइडियोलॉजी डेवलप होगी नहीं ना. हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे तभी तो आइडियोलॉजी डेवलप होगी ना. डेवलप हो रही, यहाँ थिंकिंग डेवलप हो रही है. जो घर पे था वो आइडियोलॉजी था. अब मैं मैम आइसोलेशन में हूं तो आपके विचार मेरे पास आए नहीं. तो हर थिंकिंग आइडियोलॉजी नहीं होती.
क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट आइडियोलॉजी। तुम अपने घर में कुछ सोचते थे, तुम्हारे कुछ एजम्पशंस थे, तुम अब यहाँ आते हो, तुम डिबेट डिस्कशन सुनते हो, तो तुम्हारे जो एजम्पशंस में क्लैरिटी आती जा रही, तो वही तो डिफरेंस है ना। थिंकिंग इज एंड आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी को आप आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए, आप उसको रिलीजन कहना चालू करिए। रिलीजन वर्सेस फिलॉसफी, ट्रुथ वर्सेस स्टोरी। अब तक आप स्टोरी को रियल समझ रहे थे, और स्टोरी चूंकि अनरियल है तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि रियल में थिंग्स आर नॉट गुड। इन इमेजिनेशन यू कैन बी द किंग, you want to be in imagination. How politics is being done by understanding the weaknesses of human psychology. तुम्हें कहां ले जाना है, तुम्हें फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन में ले जाना है, और तुम जब उड़ रहे हो तो तुम जमीन पे नहीं हो। तो दिस इज व्हाट यू हैव बिकम सुपरफ्लुअस पर्सन। तुम तो कहते नहीं बहुत हवा में उड़ रहे हो, मतलब तुम आईएएस बनोगे, हवा में उड़ रहे हो। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये सब कहां, ये क्या है? मार्क्स भी तो यही कह रहा है, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर हेड। तो आइडियोलॉजी हैज बीन द फॉल्स कॉन्शियसनेस। आपको बेवकूफ बना बना के रूल किया गया, तो जिसने भी रूल किया उसने आपको बेवकूफ बनाया। तो क्यों बनना है किसी से बेवकूफ? खुद क्यों नहीं रूल करना है, खुद क्यों नहीं थिंक करना है? तो masses should think themselves. They should come together and should develop their own thinking. You don't have to listen to anyone. Just go on debate. That is a basis of discourse ethics, the deliberative democracy. गांधी भी कह रहे हैं ना कि मेरी भी बात क्यों सुननी है, या नेहरू से क्यों रूल होना है। आप खुद गांव में बैठिए, खुद गांव की समस्या खुद सॉल्व करिए, कोई नहीं आएगा दिल्ली से सॉल्व करने। तो ओनली पीपल हैव अ सॉल्यूशन, लीडर्स ओनली टॉक, दे डोंट हैव अ सॉल्यूशन। तो लोग ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लीडर्स नहीं निकाल पाएंगे सॉल्यूशन, उनको निकालना ही नहीं है ना। सपने अपने तो नहीं आने लग गए हैं ना, क्या हुआ है ना। उन्होंने की है क्योंकि वो फिलोसोफर हैं, तो तभी तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बेकार का टाइम बर्बाद कर रहे थे लाइब्रेरी में, वो नॉलेज यूजलेस थी। अब चलो आगे बढ़ते भाई, कहां पहुंच गए? मास कहां है? मास हो गया। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। आइडिया का मतलब क्या है? आगे पहले लिखो, लिखो राइट 10। अब लिखो व्हाट इज अ पैराडॉक्स। व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स ये है, वी कंसीडर आइडिया एज रियल, means illusion as reality. On the other hand, we treat reality as illusion. Underline करो, reality as illusion. ठीक है, मीन्स वी डू नॉट कंसीडर रियल एज रियल। देखो, वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन रियल। वी प्रेफर टू लिव in the world of imagination. फिर लिखो what is a paradox. What is a paradox? Paradox is mass has become, नहीं, paradox is man has become mass.
and mass has become man. Mass has become man or God. Something what Marx is also saying. Money has become God and man has become mass. So man becoming mass is what you are describing as progress and freedom. So she is also a critic of enlightenment. So people think that enlightenment has took you towards freedom, but she says that we have reached towards greater slavery. There is no freedom. So she is also critic of enlightenment. She is also critic of modernity. Something like Rousseau, instrumental reasoning, instrumental this aspect of reality or enlightenment. ठीक है, अब फिर लिखो, राइट, like Rousseau, she is also critic of critic of enlightenment tradition. ब्रैकेट में लिखो मॉडर्निटी. अब लिखो व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ मॉडर्निटी. लिखो, राइट, मॉडर्निटी हैज broken the tradition. अंडरलाइन करो ट्रेडिशन. अब इनकी बुक के अनुसार द ग्रीक वे ऑफ लाइफ, द ग्रीक वे ऑफ लाइफ, Greek way of life means a consolidated community. So community with solidarity, right? Community with solidarity. यहां पे नोट करके यू राइट, राइट, many scholars link Hannah Arendt with communitarian thinking also. Communitarian thinking also. अब ऐसे लिखो, where totalitarianism can come. Where totalitarianism can come. लिखो, right, only in modern societies. Underline modern societies. Modern societies means large scale societies, bigger societies. एरो करके लिखो, just arrow and लिखो, right, totalitarianism will require critical mass, inverted commas में लिखो, critical mass. Critical mass means substantially large population. It will not come in small societies. Where people have opportunity to interact with each other on frequent basis.
ठीक है, तो टोटलिटेरियनिज्म कम व्हेन देयर इज अ क्रिटिकल मास। ठीक है, अगेन जस्ट राइट टोटलिटेरियनिज्म is a reflection of mass politics. अंडरलाइन करो मास, लिखो who are masses. Right, superfluous individuals. Superfluous means they only look like humans. They only look like humans, but have lost human condition या human existence you can write. Condition मतलब existence, essence नहीं यूज करते इसमें. Who have lost human condition. ठीक है, अब लिखो masses represent फ्लाइट, एफ ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो, फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, अब लिखो राइट, फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी अंडरलाइन करके लिखो, शी डिस्क्राइब्स इट एज अ स्टेट ऑफ वर्ल्ड एलिनेशन. World alienation. Underline alienation. Alienation means isolation. ठीक है, लिखो राइट, Marx has described isolation of individual in capitalism, whereas Hannah Arendt describes world alienation ठीक है, it means masses are alienated. ठीक है, तो masses are alienated लिखे from reality and they are in the world of ideas. अब लिखो what is the difference in Marx and Hannah Arendt. यहां पर Hannah Arendt और मार्क्स में क्या डिफरेंस? या करेक्ट, तो अगर मॉडर्निटी नहीं आती तो भी तो पॉपुलेशन ग्रोथ सोसाइटी हमारी लास्ट में जो नहीं होती वो इश्यू नहीं, क्या हुआ की एनालिसिस है, ये थोड़ी डिस्कस करेंगे क्या नहीं होती या होता. तुम्हें कैसे पता मास पॉपुलेशन बढ़ती ही नहीं. मॉडर्निटी का मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब है मास प्रोडक्शन. तो मास प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मास लेवल पे होने लग गया. अर्लियर इट वाज हैपनिंग ऑन एट सबसिस्टेंस लेवल. So there are population theories also. How can you say mass population would have increased without modernity? Modernity has resulted into very unnatural explosion of population because you adopted so many unnatural way of life. सब unnatural हुआ. अब ये सब population theories में हमें नहीं जाना है अभी, आप बस इतना पढ़िए. तो अब कहाँ पहुंच गए हम लोग? ठीक है, तो ये हमको समझना है कि मार्क्स इज एक्सप्लेनिंग एलिनेशन एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल, कि लोग एलिनेटेड हैं, एंड शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन
यहां पर एक पर्सन स्पेसिफिक, मार्क्स इज सेइंग individuals are alienated from their work, from their society, yeah, surroundings. They are alienated. Fine. So Marx is describing the alienation in factory industry, that you don't have a time to meet with your fellow workers. This is being explained in a magnified form, that alienation मतलब पैराडॉक्स क्या है? alienation in mass society तुम, you are outside your home, you are in public, there are so many people, but who are they? The alienated, isolated persons. ठीक है, तो पैराडॉक्स ये है कि सब लोग साथ में, यहाँ पे इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान अकेला है. ठीक है, तो मार्क्स के हना अरेंड्स फिलॉसफी इज summing up all philosophers actually and critically evaluating their ideas or building upon their ideas. That's why you read as a last thinker. ठीक है, तो दिस इज वॉट शी इज जस्ट एक्स्ट्रापोलेटिंग कि वर्ड एलिनेशन है, एक इंसान का दुख नहीं है, सबका दुख है, और सब साथ है लेकिन फिर भी साथ नहीं दे पा रहे. ठीक है, तो यू आर आइसोलेटेड इन द क्राउड, the crowd happens, some problem happens, stampede starts happening. ठीक है, तो this is like, if you will think logically or think calmly, in the stampede less number of people like would have died, but because of a stampede so many people died. You don't know anything, you just start running, you just start running like a billiard ball. It's a control, you just open up the balls will keep on floating wherever. What is the difference between your behavior and few balls? You just leave the ball, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या होना है. मंदिर गए, स्टैम्पेड हो गया, कोई इधर, उससे पूछो भाई कहां जा रहे हो, उसे पता ही नहीं. तुम भी कहां जा रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता. क्यों जा रहे हो ये भी नहीं पता, क्योंकि सब जा रहे. क्यों कर रहे हैं आप यूपीएससी? क्योंकि सब कर रहे हैं. तो वो आपका पर्सनल कुछ है ही नहीं ना. तो दोस्त का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी दुख कम हो जाता है, क्योंकि उसका भी नहीं हुआ. तो ये क्या है? ये he's trying to explain the concept of word alienation. Time and again she is trying to show that how much isolated life we are leading, and because of this isolation we lose capacity to think, and because we do not have capacity to think, we get succumbed to the propaganda, we get succumbed to such stupid ideas, and we start thinking that idea is real, and we start imagining ourselves in that way. So there are many ideas. Nationalism is also one such idea. You start behaving, तुम्हें पता ही नहीं होता था, अचानक इतने दिन से रह रहे थे, अचानक पता चल गया तुम आर्यन हो. ठीक है, और अगले दिन पता चल गया तुम कार्तिक आर्यन हो. ठीक है, जाके किसी को प्रपोज कर दिया, भाई हम कार्तिक आर्यन है. तो ये सब से क्या हो जाता है? सब हो जाता है गड़बड़. अभी तक जर्मन में सब रह रहे थे, अचानक पता चल गया आर्यन है, अगली कहानी पता चल गई, और सब पास्ट से लिया जाता है क्योंकि प्रूफ नहीं कर सकते. अब और इनके पास ऐसा, इन्होंने मतलब टोटलिटेरियनिज्म, दे ऑब्जर्व कि what all is happening around, by what we can manufacture politics. So anti-Semitism was happening in other countries also. Jews and Germans were living together, there was no problem, but suddenly the problem started coming up. So they just thought what issue can be made. तो इन्होंने इशू बनाया, वैसा इशू, एक थियरी बनाई. दे मेड अ थियरी विच
can be proven easily because of certain incidents. तो जैसे it's not that it's not that Hitler had a hatred against the Jews. It could have been anyone. Anyone, because he had to make politics out of it. Fine. So anyone has to become a target. Not just because you really hate, but because you require that person, that issue for your politics. That is why she will explain in her book Banality of Evil that Eichmann had no hatred towards the Jews, but he still killed the Jews. Fine. He found it very normal. So she is symbolizing, or Eichmann is a symbol of all of us. She is trying to tell that whatever Hitler did, but the question is why everybody in Germany was believing in Hitler. Fine. So that is also a question. What made people believe in what Hitler was saying? Fine. Not just fear. He was able to develop a theory. That theory, she uses the term ideology. What is that theory? That theory is anti-Semitism की उसने theory बनाई और उसने कहा कि Jews जो है खराब है. अब ऐसा कैसे बनाई theory? क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि चल क्या रहा है, चलेगा क्या, मार्केट में क्या चीज चल रही, डिमांड क्या है. जैसे अभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यूपीएससी में क्या चल रहा है, मेंटरशिप. ठीक है, बच्चों को क्या चाहिए, मेंटरशिप. अब हर एक व्यक्ति के लिए एक मेंटर, जितने टीचर उतने मेंटर उतने स्टूडेंट, 1:1:1 रेशियो. यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे बैठ के मार्केट स्टडी करा जाता है, ऐसे पॉलिटिक्स में भी स्टडी किया जाता है, चल क्या रहा है, वोट किस पे आएंगे, प्याज पे आएंगे कि गोभी पे आएंगे, माहौल क्या है. ठीक है, तो ऐसे उसने माहौल देखा. तो इन हर बुक शी राइट्स द ड्राइफस अफेयर. Dreyfus was a Jewish official in French army and he was punished actually for no fault. Fine, because democratic politics requires an agenda. Democratic politics require propaganda. If there is a direct politics, you don't require a propaganda. You will talk about the issue which you face and the problem is there that you will solve. आप पंचायत में हैं, गांव में हैं और इलेक्शन गांव तक सीमित है, तो आपको कोई प्रोपेगेंडा की जरूरत पड़ेगी नहीं. आपकी प्रायोरिटी क्या है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ माई विलेज, दिस इज वॉट आई एम लुकिंग फॉर. बट व्हेन इलेक्शंस विल हैपन एट अ नेशनल लेवल which you are so far disconnected, that time what you will require, political party को भी क्या चाहिए, प्रोपेगेंडा चाहिए होता है. तो प्रोपेगेंडा, इसीलिए कौन सी डेमोक्रेसी बेटर है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी. कौन सी डेमोक्रेसी यूजलेस है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म. What is totalitarian? Who are totalitarian? How does she describe? Totalitarians are the dictators elected by the mass support. Why mass support the dictator? Because dictator has something to tell which masses like. Why masses start believing the dictator? Because of the personality of the dictator. कोई इंसान, मान लो शाहरुख खान कुछ कह रहा है, जाके जवान देख लो, बहुत रद्दी पिक्चर, लेकिन मैं कह रहा हूं देख लो, तो देख ही लेते हैं. हम भी चले गए फालतू में. आई एम अ फैन ऑफ शाहरुख खान. सो अरे भाई, हम लोग की उम्र के टाइम में, हम लोग जब कॉलेज में थे तब का हीरो है ना वो. फर्स्ट मूवी आई वॉच वॉज किरण. से फैन है हम लोग शाहरुख खान के, तो देख लिया, लेकिन खराब लग गया. मतलब बहुत बोर था, ऐसे ही दे देते शाहरुख खान, फंड को दे देते पैसा. ठीक है, तो अब यही है, किसी की बात आपको दिल है कि मानता नहीं, आप सुन लेते हो उसकी बात. क्यों? क्योंकि why masses she is explaining,
Why masses were listening to Hitler? Because everybody understood no one has solution for their present problem. What was present problem? Unemployment and other things. So since there was no problem in the real world, people wanted to come out of the real world. So they started listening to Hitler, who has his own stories. तो लोगों ने स्टोरी पे वोट दिया, वोट रियलिटी पे थोड़ी दिया गया. किस पे वोट दिया गया? स्टोरी पर. एक कहानी, लोगों को लगा कि भाई बढ़िया कहानी है, चल जाएगी तो अच्छा है. ठीक है, तो दैट हैज, दिस इज अगेन एक्सप्लेनिंग द पैथोलॉजी ऑफ अ मास सोसाइटी and how masses, the moment we become mass, we become susceptible to totalitarianism. Yeah. Ma'am, the concept of racial purity, even if it is totalitarian. What? Ma'am, the concept of racial purity. Racial superiority. Ma'am, purity. Racial purity is not totalitarianism. Totalitarianism is building an ideology. And you can create this ideology out of nothing. आपको कहीं से भी आप एक इशू बना दीजिए, आप ये मुद्दा बना दीजिए, ऐसा मुद्दा जो लोग विश्वास करने लगे और वो कहानी चल जाए. So, ma'am, how is it justified to call racial purity as wrong or like? रेशियल प्योरिटी रॉन्ग नहीं है. मैम वही मैं बोल रही हूँ कि वो मतलब इशू रॉन्ग राइट का नहीं है. एजेंडा उसने हिटलर को समझ में आया कि अभी क्या चीज बिकेगी. तो दिस वॉज हैपनिंग इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. एंटी सेमाइटिज्म उसका एंटी जूइश कंसेप्ट था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया ना हिटलर, तो उसको समझ में आया कि चल क्या रहा है. तो यूरोप में क्या चल रहा था? एंटी सेमाइटिज्म वॉज गोइंग ऑन. वाई? क्यों? इतने दिन से ज्यूज रह रहे थे यूरोप में, एंटी सेमाइटिज्म क्यों चला? बैंकर्स वेयर ऑल्सो ज्यूज. यही तो तुम लोग भोले वाले बच्चे हो, तो समझते ही नहीं. कुछ होता नहीं है, कराया जाता है. हिटलर हैज टू रूल नहीं, इजराइल हैज टू बी क्रिएटेड. यूएस की कहानी है, हिटलर को प्रमोट यूएस ने किया. ज्यूज को जब तक मारोगे नहीं, तब तक सेंटिमेंट कैसे बनेगा टू क्रिएट अ सेपरेट होमलैंड फॉर ज्यूज? तो ज्यूज की, हिटलर का तो असली टीचर यूएस है, वो वहीं से सीख रहा है. तो ज्यूज मतलब यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, they all are creating an environment to create a state of Israel. The state of Israel will be created when Jews will have no homeland. Jews will be persecuted everywhere. तो Jews का persecution करवाना था, तब जाके इजराइल बनेगा. अब इजराइल कहाँ पे बना है? इजराइल is in the Mediterranean Sea. Coast of Mediterranean Sea. Coast of Mediterranean Sea means major sea route. From Mediterranean you can control the Europe. They needed a military post there. तो इसलिए पोस्ट बनाना है, ऊपर से इजराइल का बनाना है, क्योंकि इजराइल वाले हमेशा एहसान माने कि भैया तुम्हारे कारण हमारा देश बना है. तो इजरायलीज के खिलाफ ये सब, ज्यूज के खिलाफ ये सब चीजें स्टार्ट हो गई अचानक. इसका मतलब है एनी वन कैन बिकम टारगेट एनी टाइम, नोबडी इज सेफ. Not a happy, it is my interpretation. Why Jews? Because ultimately what happened is creation of Israel. Who wanted this? On the basis of Hannah Arendt's work, if you start applying analysis, you can reach to that point. What she's trying to point it out, it was just an ideology. He just created a propaganda. Ma'am, so is she anti-institution because she's saying that institution? She is anti-institution. Because they are making the masses detached from reality. She is anti-institution, correct? And that is why her theory of power
is against institution, and she says that institution petrifies power. तो how depth in depth thinker and symbolically फिर आपको सब मतलब वही there is no better work on totalitarianism than Hannah Arendt's work. तो ज्यूस को अगर आज का लेक्चर दिखा दो तब ये सब फिलिस्तीन वालों के साथ हो जाएंगे कि भैया अभी ये हमें नहीं लगता उन मतलब ऐसे मासेस को ये सब चीज पता होगी या उन्होंने इस चीज को एनालाइज क्योंकि पढ़ा ही नहीं होगा. ये समझिए कि इंडिया मतलब मानना पड़ेगा कि इंडिया में हाना अरेंट पढ़ाया जाता है. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए. एंटी जूइश इसमें लिख के कहां पहुंचे? मार्क्स एंड लेनिन. आई सेड मार्क्स एंड अरेंट. तो हियर लिखो लिखो मार्क्स इज डिस्क्राइबिंग alienation in a limited sense. Limited sense में describe कर रहे हैं. Whereas Hannah Arendt is describing at mass scale. Underline करो mass scale. लिखो the paradox is that even in public sphere comma even in the presence of others comma every person is isolated. Isolated अंडरलाइन करके लिखो. एटमिस्टिक ठीक है. एटमिस्टिक अगेन लिखिए. मास है. मास मीन्स हैविंग नो इंडिविजुअलिटी. means no distinctiveness. लिखो राइट. no distinctiveness. अब लिखो she compares mass with point number 1 particles of desert in a storm. पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन अ स्टॉर्म. आंधी में आप उड़ रहे सब पार्टिकल्स हैं तो सब साथ में चल रहे हैं लेकिन आपकी स्थिति कैसी है? लाइक द डस्ट पार्टिकल्स मूविंग इन द स्टॉर्म. नो इंडिविजुअलिटी. वेयर स्टॉर्म इज गोइंग यू आर जस्ट मूविंग. तो दिस इज हाउ यू एज अ पर्सन हैज बिकम सुपरफ्लुअस. यू डोंट हैव choice like a dust particles in a storm. एक तो dust particle in a storm में the way she explains. Second लिखो a huge iron bend. Huge iron bend. Huge iron bend. तो ह्यूज आयरन बेंट मीन्स यू आर इंडिविजुअल आयरन ओर हो. ठीक है, अलग अलग हो लेकिन तुमको फिल्टर करके आयरन बना दिया है. तुम्हारी जो इंडिविजुअलिटी इज नो मोर देयर. यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस रॉड या बेंट करके बना दिया है. यू आर नाउ कन्वर्टेड. सिंगल पीसेस आर नाउ बीइंग ब्रॉट टुगेदर एंड मेड इनटू वन. And despite being one, you are so isolated. ठीक है, तो a huge iron rod, a bent iron rod हो तुम. Fine. तो you are together, you are being converted,
where everyone is losing its individuality. Fine. So now the question is why people, ऐसे लिखो, why people accepted the propaganda of totalitarians. लिखो, right? Because there was nothing good in their life that was happening. Nothing good was happening. Right? She suggests that totalitarianism comes when, right inverted commas, is stable context of our lives, stable contexts of our life get destabilized. जीवन में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, जॉब नहीं है, क्या होगा पता नहीं. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? व्हेन स्टेबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ गेट्स destabilized. लिखो, राइट? व्हेन इट इज लेस पेनफुल to live, less painful to live in imagination than living in reality. Right? In such psychological conditions, people easily succumb, succumb, fall prey, easily succumb to the propaganda it means social, economic, political stability is very important because people can easily fall prey to this type of propaganda. ठीक है, लिखो, राइट, in the state of hopelessness, comma, despair, DESPAIR, in the state of hopelessness, comma, despair, right? Propaganda gives ray of hope. ठीक है, अंडरलाइन करो, रे ऑफ होप. रे उम्मीद की किरण है. ऐसी चीजें जहां सब कुछ गड़बड़ है, ना जॉब है ना कुछ है, तो प्रोपेगेंडा में जाकर के लोगों को एक पॉजिटिव मिलता है, रे ऑफ होप. ठीक है, अब मेन चीज ये है, इन दिस सिचुएशन फैक्ट it becomes, when people are in distress, they cannot make a difference between fact and fiction. So fiction becomes fact, fact appears fiction. Fine. And they start living in fiction and they start thinking. And again she says that what is truth? So truth you can make. Truth is what people believe in. So what people believe in, you can tell something on a daily basis. People will start believing. Fine. So propaganda, Hitler has even a propaganda minister. उसका काम ही था डेली बेसिस पर शाम को 5 बजे चौपाल. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और प्रोपेगेंडा बनाना, बनवाना. तो जो आप ट्रुथ बना सकते हो, यू कैन मेक पीपल बिलीव, बिकॉज if something is being told, if you tell lies 100 times, people will start considering it as correct. This is what Hitler,
and others have done. तो ये वो state है where fact appears fiction, fiction appears fact. People lose the capacity to distinguish between fact and fiction, and they prefer fiction more. And how fact becomes fiction, fiction becomes fact through प्रोपेगेंडा. तो प्रोपेगेंडा जो है वो फैक्ट और फिक्शन के डिफरेंस को आपके दिमाग को इतना हावी कर देता है, आप समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, तो प्रोपेगेंडा कहाँ चाहिए? मास डेमोक्रेसी. तो मास डेमोक्रेसी इज मोबोक्रेसी. व्हाट शी सेज दैट डोंट फील हैप्पी दैट you have a representative democracy. There is nothing to celebrate. It is a cause to worry because this thing is happening for democracy. ठीक है, तो सबसे खतरनाक चीज ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो ओपनली टोटलिटेरियनिज्म है तो चाइना वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक वाले समझ ही नहीं पाएंगे. क्यों नहीं समझ पाएंगे? इम्पैक्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है. तो फिक्शन इज बिकमिंग फैक्ट. तो ज्यादा बड़ा डेंजर कहां पे है? ज्यादा बड़ा डेंजर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लाइक यूएस में है. ठीक है, ओके. इंडिया में, इंडिया इज सेफ. इंडिया तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. चलिए आगे बढ़िए, कहां पहुंचे? इट्स अ रे ऑफ होप. अंडरलाइन करो, रे ऑफ होप. अब देखो, इट इज नॉट जस्ट अ रे ऑफ होप. It give them a sense. कौन सा सेंस? लिखो, राइट. As if they are the part of some great heavenly mission. भगवान ने चुना है ये कार्य करने के लिए आपको. ठीक है, आपके कार्यों से, आपके शुभ हाथों से संपन्न होने वाला कार्य है. यू अंडरस्टैंड? आपको लगता है कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है. यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रैंड प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री, एंड सडनली यू रियलाइज दैट my life carries no purpose. You get a purpose and you become the most active member of the party. तो आप पार्टी के सबसे एक्टिव मेंबर बनते हैं. पार्टी के सबसे एक्टिव मेंबर कौन होते हैं? जो कार सेवक. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसके कारण दुनिया बदल जाएगी, इतिहास बदल जाएगा. मतलब चलो नौकरी नहीं मिली, लेकिन you have an opportunity to participate in something big which you have never imagined. ठीक है, तो उनको ये लगने लगता है, तो उससे अफेक्ट हो गए. ठीक है, क्या लिखा है आपने? heavenly means some great goal. You are now a part of that goal. अब again you write, according to Hannah Arendt, totalitarianism comes when people lose capacity to make the distinction between fact and fiction. अंडरलाइन करो, फिक्शन. फिक्शन इज एक्सेप्टेड एज द अल्टीमेट रियलिटी. ठीक है, अब लिखो, व्हाट क्रिएट्स फिक्शन? लिखो, आइडियोलॉजी. अंडरलाइन करो, आइडियोलॉजी.
What is ideology? Flight from reality. Flight from reality. Ideology can never be real because reality is never right. You will never like the reality. So you have to be told fiction. You have to be told to these stories. Fine. So flight from reality. अब लिखो why people believe in this. देखो right, because totalitarianism is based on charismatic leader. Underline करो charismatic leader, right? One person. लिखिए one person controlling the power of masses. Underline करो masses. लिखो masses have lost power. अब लिखो what is democracy? लिखो empowerment of masses. Empowerment of masses. Empowerment of masses means masses control the public sphere. अब लिखो what is totalitarianism? Right? Powerlessness of masses. देखो total control of one person or a party. Total control of one person or a party. ठीक है. अब लिखो what is the paradox? लिखो masses are present in public sphere. या ऐसे लिखो people are present in public sphere. लोग तो हैं पार्टी की रैली में, ठीक है. People are present in public sphere, but they are just a mass. अंडरलाइन करिए मास. देखिए व्हाट इज अ फीचर ऑफ अ मास? लिखो मास कैन बी सेट इन मोशन. मोशन में बॉल को आप ढकेल सकते हैं. मास कैन बी सेट इन मोशन मीन्स लीडर brings masses in the state of motion. ठीक है. तो जिधर उड़ा दिया उधर उड़ गए. स्टेट ऑफ मोशन. अगेन लिखो 10. They are like the dust particles in the sandstorm. लीडर ने फूंक दिया और उड़ गए मासेस उधर ही. ठीक है. दैट इज कॉल्ड टोटलिटेरियनिज्म और लीडरशिप. तो लीडरशिप, leaders image is first built. First of all you have to start building the image of the leader, and then what leader says, whatever story leader says, you will not question the leader, fact or fiction. Your capacity to understand that goes. So what is a paradox? You are in public sphere. It is a mobocracy. Masses are participating, but you are not holding any power.
power is being monopolized. The total control is in the hands of the leader. You are just a mass in motion. ठीक है, तो अब फिर लिखो व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म. ऑफ कोर्स यस. तुम लोगों को समझ में आ रहा है बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं अब. अभी बताएंगे, अभी पहले ये सब फ्लो समझो. बाकी आपको वो बुक ही पढ़नी पड़ेगी तभी उसकी बातें समझ में आएंगी. एक्चुअली क्या लिखा है आपने? व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म, ये लिखो. टोटलिटेरियनिज्म की खासियत क्या है? व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म लिखे. टोटलिटेरियनिज्म is the end of party politics. ठीक है, फिर लिखो totalitarianism is always a movement. totalitarian movements होते हैं. ठीक है, totalitarianism is always a movement. अंडरलाइन करो मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स masses in motion. अब लिखो व्हाट इज मूविंग द masses. क्या चीज मूव कर रही? राइट, आइडियोलॉजी इज मूविंग द masses. मतलब who is giving this ideology? Leader. Ideology is moving the masses. फिर लिखो what is ideology? लिखो a principle of action in totalitarianism. Principle of action in totalitarianism. Is it a real political action? When you go to the rally? No, it's a superfluous political action. It is a principle of action in totalitarianism. फिर लिखो what are the features of, लिखो what are the features of totalitarianism? Right, ideology and terror. ठीक है, अब फिर आगे लिखो व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म. बहुत मुश्किल से हम समझा पा रहे हैं होपफुली. व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म. ठीक है, लिखिए रूल ऑफ टोटल टेरर. टोटल टेरर, only a rule of terror. ठीक है, total terror means violence, rule of violence. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लिखो till totalitarianism is not able to finish its project or reaches its end point, it will require ideology. फिर लिखो अंडरलाइन करो आइडियोलॉजी. अ प्रिंसिपल ऑफ मोशन. प्रिंसिपल ऑफ मोशन. फिर इसको एरो करके लिखो. लिखो टोटलिटेरियनिज्म रिक्वायर्स मास मूवमेंट. अब नेक्स्ट लिखो masses are
made part of movement through ideology. अब फिर लिखो, paradox is they are moving together yet they are isolated or alienated. रैली में जा रहे, गड़बड़ हो गया सब एक दूसरे को, yet they are isolated. फिर ब्रैकेट में लिखो वर्ल्ड डोमिनेशन, नहीं वर्ल्ड एलिनेशन. अब लिखो व्हाट इज द एम ऑफ टोटलिटेरियंस. बहुत सारी चीजें तुमको बुलवा मत देना, हम लिख लें, ये नहीं बताना है क्या. नहीं देख सकते हैं. तुमको लग रहा है तुम हना एरेंट से क्वेश्चन करोगे. तुम अभी बस सुनने का काम करो, समझने का नहीं. बस अभी मतलब इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट शी इज सेइंग. आपको बहुत इमेजिन करना पड़ेगा तब जाके उसकी बात समझेंगे. तो टोटलिटेरियनिज्म क्या है? टोटल टेरर है. टोटल टेरर मीन्स टोटल वायलेंस है. ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो यू विल फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड हर कंसेप्ट ऑफ पावर. पावर वर्सेस वायलेंस. तो पावर मीन्स people have power. State, what one person has is violence. So when public sphere is completely controlled by one country, one leader, one party, one, all one, ठीक है, हम सब एक हैं जिस दिन होता है, that is totalitarianism. और केवल totalitarianism is always imperialistic. Fine, means it is always expansionist, means they will always, because it is expansionist, so totalitarianism is always in the form of movement. It keeps people in the state of motion. तो क्या एम क्या है टोटलिटेरियनिज्म का? कितने लोग सो रहे? ठीक है, सो चलिए क्या करते हैं. Is she not interesting? हाँ, यही तो है. लेकिन जब सारे उसके कॉन्सेप्ट होंगे और फिर आपको एक पिक्चर दिखेगी तब समझ में आएगा एक्चुअली. हमारे एरेंट मतलब डिफिकल्ट. अच्छा, ठीक है. अभी बट अगेन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग व्हेन एवरी टर्म ऑफ हर इज क्लियर. ठीक है, तो राइट नाउ व्हाट इज द लास्ट लाइन यू रोट? अभी हम उसके सारी चीज कट करके पढ़ा रहे हैं, की पॉइंट्स बताते जा रहे हैं. तो एम ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इज राइट टोटल डोमिनेशन, या ऐसे लिखो एम ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इज, यू कैन राइट टोटल डोमिनेशन. हर चीज टोटल है, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सब टोटल है. यू अंडरस्टैंड मी? टोटल डोमिनेशन. टोटल डोमिनेशन मीन्स वर्ल्ड विक्ट्री, कंट्रोलिंग द वर्ल्ड. means totalitarian agenda to be applied at a global level. Totalitarian agenda at global level means homogenization at world level. It means entire world under
one ideology, one party, one leader, one. Hitler wanted to have a control because totalitarianism is homogenization. If it will come in one country, it is not enough. It has to always come at the global level. तो it is a total world, तब जाके total control होगा. ठीक है, entire world getting homogenized, entire world based on one set of principles. That was the aim of Hitler also, because a totalitarian will not compromise with anything less than total. ठीक है, तो अब लिखो hence totalitarianism is imperialist, expansionist. Their aim is victory over the world. फिर ब्रैकेट में लिख दो टोटल कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंट्रोल. तो आईएसआईएस मूवमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? आइडियोलॉजिकली दे ट्राइड टू बिल्ड दैट. इंडिया का नहीं, इंडिया इस सबसे ऊपर. ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट होगा. तो टोटलिटेरियनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपेंशन. तो जब तक आपको एक्सपेंशन करना है, इसलिए मोशन में रखना है, स्टॉप नहीं होना है. तो जब टोटलिटेरियनिज्म का एंड खत्म होगा तब मोशन खत्म होगा. व्हेन मोशन एंड यू डोंट रिक्वायर एन आइडियोलॉजी. व्हेन यू डोंट रिक्वायर एन आइडियोलॉजी, then it will be a rule of total terror. That's all. Till it has not reached to its final aim, it will be a combination of ideology and terror. Yes. Ma'am, after the disintegration of USSR, can we say that we are living in a world or totalitarian state of USA? Because the rule-based order presently we have is actually the US-based rules, US-made rules. Americans always had an aim. So that is very explicit. Their aim is to establish hegemony of US. So what is the difference between Hitler and America? Hitler was trying to do it through violent means, coercion, whereas America understood the mistakes and they are trying to establish by consent and coercion where required. So this is always this is all expansionist imperialist aims. तो अमेरिका को कौन सी आइडियोलॉजी लग रही है? डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स. तो जिस देश के लोगों के पास डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो वो फिर सपने देख रहे हैं डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के. ठीक है, तो यही उनका सब पॉलिटिक्स ही टोटलिटेरियन है, इफ इट इज नॉट अ मास पॉलिटिक्स, इफ इट इज नॉट अ ग्रास रूट पॉलिटिक्स. तो शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इन मॉडर्न सोसाइटी. Totalitarian. Totalitarianism doesn't end with Hitler. It can rise again because the germs of totalitarianism are in the way of life of modern societies. And what is that? Representative democracy and वही है breaking the public sphere. तो aim क्या है totalitarians का? Total control. Once they will establish total control, they will not require ideology. Till वर्ल्ड लेवल दे विल रिक्वायर एज अ मूवमेंट. ठीक है, तो फिर से ऐसे लिखो. क्या लिखा है लास्ट लाइन? विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड. अब लिखो टिल दे रीच द फाइनल गोल. व्हेन ओनली टेरर विल सफाइस. Terror will suffice, will be sufficient. They require ideology. They require ideology. Underline करो ideology. Principle of motion. फिर एरो करके लिखो. Ideology keeps masses in motion.
अब देखो, दैट इज वाई totalitarianism is always in the form of movement. मोशन, चलते रहो, बढ़ते रहो, वीर तुम बड़े चलो, यू अंडरस्टैंडिंग दिस मोशन। तो ये सब मोशन में रहते हैं, ये टोटलिटेरियन मूवमेंट्स थे, एंड देयर एम इज विक्ट्री बिकॉज दे वांट एंटायर वर्ल्ड टू बी बेस्ड ऑन वन प्रिंसिपल, वन सेट ऑफ रूल, वन आइडियोलॉजी, सब वन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है व्हाट डज, फिर अब व्हाट एल्स शुड यू अंडरस्टैंड बाय मूवमेंट, ठीक है। तो अब लिखो, व्हाट डज टोटलिटेरियनिज्म एज अ मूवमेंट एक्सप्लेन। नो, अशोका वॉज तो टॉलरेशन, प्लूरैलिटी, डाइवर्सिटी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप वन प्रिंसिपल सब पे लगा रहे हैं, हिटलर का क्लियरली है ना, अशोका का तो बिल्कुल भी नहीं हो, तो टॉलरेशन है, तो डाइवर्सिटी प्लूरैलिटी की एक्सेप्टेंस है, और स्टेट इज प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटीज है, तो वो टोटलिटेरियनिज्म नहीं, अमेरिकन इंपीरियलिज्म को आप कह सकते हैं, ठीक। तो अब हमको मूवमेंट से और क्या समझना है, दैट टोटलिटेरियनिज्म इज अ मूवमेंट। मूवमेंट एंड पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस? इवन you should know, non-alignment was a movement. It was never made into an organization. Fine. And at times it is said that that was the reason for weakness of NAM, कि NAM को एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहिए था, then they would have acted in a more organized way. But what is the problem? Why certain things are left in the state of motion or movement? तो NAM को मूवमेंट फॉर्म में क्यों रखा गया? नैम को ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, नैम का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। क्यों? वाई मूवमेंट? बिकॉज मूवमेंट इज फ्लेक्सिबल, यू कैन इजिली चेंज द एजेंडा। तो जब आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म लेता है, देन यू हैव अ चार्टर, यू स्टिक टू अ प्रिंसिपल एंड it becomes petrified. But और फिर जैसे UN है, UN is in the form of an organization, it has a charter, so now the time has changed, UN need to do many things different, but charter is constraining, whereas NAM has avoided any organizational rules. NAM was just a consensus on certain principles known as Bandung principles. Fine. And even if you were a member of a bloc, still you could have joined NAM. So NAM was a very flexible approach. So when you keep something in the state of movement, means it is easy to change. You can change as and when. So why totalitarians kept totalitarianism as a movement? One reason was their aim was the victory over the world, and you need a constant motion. Fine. Another reason was flexibility. What is this flexibility? Flexibility means you can change the agenda. तो हिटलर कल तक कहेगा कि ज्यूस को मारना है, लेकिन फिर पता लगा लोग उस स्टोरी से बोर आ गए, तो उसको नई स्टोरी बनानी है, तो नई स्टोरी आसानी से बन जाए, ठीक है। तो इसलिए मोशन में रखा गया, मूवमेंट में रखा गया, कि अभी एंटी सेमाइटिज्म चल रहा है, मान लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, उसके बाद लोग उससे अफेक्ट नहीं हो रहे, तो तुम कोई दूसरा एम रख लो,
अब दूसरा एम लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? लोग तो कहेंगे आप एंटी ज्यू थे, आज आप प्रो ज्यू क्यों हो गए? तो लोग नहीं कहेंगे, यही बात है, क्योंकि मास है, वो क्वेश्चन करेंगे ही नहीं मास से। तो लोग क्या कहेंगे? लोग बस मास मतलब क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लीडर है और लीडर का इम्पैक्ट है, और वो तो बस उड़ रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं पता है। अगर लीडर ने कहा आज एंटी ज्यू हैं, कल प्रो ज्यू हैं, तो वो प्रो ज्यू हो जाएंगे। वो ये भी नहीं पूछेंगे कि कल इनको मार रहे थे, आज क्यों नहीं मार रहे। तो ये सब लीडर का इम्पैक्ट है, दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो वाई totalitarianism is in the form of movement. One is world victory. Another thing is world victory will not happen in a single day. So from time to time you need to change the agenda, because people will be bored also with the story, and you don't know how many generations will be required. तो अब क्वेश्चन ये है कि इसलिए बनी थी पार्टी, आज कुछ और कर रही है। तो आज कुछ और कर रही है, ये तो वो सोचेगा जिसको पता है। वो सिर्फ ये कह रहा है लीडर ने कहा इसलिए आप कर रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट अप्लाइंग योर माइंड कि कल ये पार्टी इसलिए थी, आज ये पार्टी इसलिए। तो ये दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू शो, द इम्पैक्ट ऑफ द लीडर एंड द कैरिस्मा एंड द आइडियोलॉजी। Ideology makes you so thoughtless. You can't ask questions also. You will not have a capacity to ask question. तो लोग बस ये कहते थे ना भाई long live Führer, तो आप बस यही कहेंगे ना yes sir, तो आप yes sir yes sir yes sir हो और कुछ नहीं हो, तुमको ये कहा ही नहीं जाता। तो again she will describe a feature of modernity is bureaucratization of our life. So who is Eichmann? She will describe. Eichmann was a bureaucrat. So who is a bureaucrat? Who doesn't think? ठीक है? Who is a machine? Who applies the rules mindlessly? So why Eichmann was following the order of Hitler? Because he was not applying his mind. तो यही bureaucracy है। तो modern state, because it is big enough, democracy has been replaced by bureaucracy. What is bureaucracy? Bureaucracy is a mindless machine. आप आर्मी को बस ऑर्डर देते हो, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया मार दो, तो मार दिया उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये भी इंडियंस हैं और हम भी इंडियंस हैं, क्योंकि ट्रेनिंग है। आर्मी की ट्रेनिंग क्या है? आपको सोचना नहीं है, आपको फॉलो करना है ऑर्डर। तो कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन ब्यूरोक्रेसी, the training of bureaucracy and the training of army and military, because it is all your training aims at making you mindless. जो जितना mindless उसका इतना उतना ज्यादा फोटो सेलिब्रेशन। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो एक नमूना पकड़ लेती है सरकार, ठीक है, और वो बन जाता है आइडियल, और सबको लगता है मुझे भी ऐसे ही करना है। ये फिर वो एक स्ट्रेटेजी, दैट इज एन स्ट्रेटेजी। तो अभी समझ में आया मूवमेंट, व्हाट इज अ मूवमेंट? कई टोटलिटेरियनिज्म एज अ मूवमेंट। तो वाई टोटलिटेरियनिज्म एज अ मूवमेंट? फिर लिखो राइट, बिकॉज इट्स एम इज वर्ल्ड डोमिनेशन। ठीक है, बिल्कुल राइट। इट मे रिक्वायर लॉन्ग या सस्टेनेंस इन लॉन्ग ड्यूरेशन। सस्टेनेंस इन लॉन्ग ड्यूरेशन। तो सस्टेनेंस इन लॉन्ग ड्यूरेशन मीन्स देयर मे बी a requirement, there may be a requirement to change the propaganda. Hence totalitarianism is always
in the state of movement and not in a rigid form. अब फिर लिखो, why people will accept the changed agenda. लिखो, right, because they have lost capacity to think. लिखो, right, they have devoted themselves to the leader. भक्ति में शक्ति, कोई क्वेश्चन थोड़ी करता है लीडर को, खुद कोई क्वेश्चन करता है कि मैं क्यों क्वेश्चन कर रहा हूं। कोई लीडर को जब क्वेश्चन करता है तो 5 दिन जाके मंदिर में दिया जलाता है कि इतना बड़ा पाप किया हमने कि हमने लीडर को क्वेश्चन कर दिया। ऐसा इंपैक्ट होता है लीडर का, ठीक है। तो वाई यू रिक्वायर इट इन द स्टेट ऑफ मूवमेंट, बिकॉज यू हैव टू चेंज इट, पीपल विल नॉट। अब एक और लिखो, हाना अरेंट डिस्क्राइब्स totalitarian organization as totalitarian organization as having onion like structure. Onion like structure. Onion like structure means hollow from inside. Hollow from inside means leader as well as the inner core of the movement. अंदर के लोग जो हैं, they all know the propaganda. उनको पता है इसमें कुछ सच्चाई नहीं। They all know that it is a propaganda. It is all hollow what they are speaking. ठीक है। अब लिखो, who has the greatest faith in totalitarian ideology? हिटलर को खुद थोड़ी फेथ था, तो खुद कभी बदल देता। फेथ किसको था? लिखो, मासेस। मासेस मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अनियन। मोस्ट सुपरफ्लुअस, ऐसे करके उतर जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा तो भक्ति उन्हीं में होती है। आइडियोलॉजी में सबसे ज्यादा विश्वास उन्हीं को है, लीडर को नहीं है, ठीक है। तो मूवमेंट और मासेस। तो हाना अरेंट पढ़ने के बाद यूपीएससी से कुछ मन तो नहीं हटा आपका? अगर वो सब हटा तो हम फिर उसी पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ाना चालू कर देंगे।